লোকসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ বদনাম সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উদঙালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে যোৰহাটত পৰাস্ত বিজেপি লোকসভাৰ মজিয়াত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ দপদপনি অব্যাহত লোকসভাৰ মজিয়াত গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতি বিচৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মোদী আৰু শ্বাহৰ নিৰ্দেশতে গৌৰৱ গগৈ যাতে পুনৰ জয়ী হ'ব নোৱাৰে তাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱক হৰুৱাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিল কিন্তু এই সকলো চেষ্টা অপচেষ্টা বিফলে গ'ল লোকসভাৰ মজিয়াত পুনৰ দপদপনি আৰম্ভ হ'ল অসম সন্তান গৌৰৱ গগৈৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক তোলা ধোনা দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মোদী শ্বাহৰ লগতে লোকসভাৰ মজিয়াত সাংসদগৰাকীয়ে লক্ষ্য কৰি লয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হাৰিল বুলি দাবী কৰি লোকসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত নিজৰ ভাষণ ৰাখি গগৈয়ে কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ ৰাইজে প্ৰকৃততে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিছে আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন্ধু বদৰুদ্দিন আজমলক হৰুৱাই ধুবুৰীৰ ৰাইজে দেশলৈ নতুন বাৰ্তা দিছে বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके द्वारा जोरहाट के लोगों को जिन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धुबरी के लोगों को जिन्होंने एक सांप्रदायिक शक्ति को 10 लाख वोटों से हराकर एक संदेश दिया है कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक गुरु भी कहता हो लेकिन धर्म के नाम पर अगर समाज को बांटता है तो प्रजा उसके साथ नहीं होगी मन কৰিবলগীয়া আছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচিত সাংসদসকলকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে আপোনালোকে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত এইবাৰ আপোনালোকক কোনেও ভোট দিয়া নাই যিসকলে জয়লাভ কৰিছে সেয়া আপোনালোকৰ নিজৰ কৃতিত্ব मैं शुरुआत में भाजपा के सांसदों और हमारे इंडिया अलायंस के सांसदों और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता चाहूँगा कि वो इस चुनाव में जीत के आएँ और विशेष रूप से मैं भाजपा के सांसदों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि आज इस चुनाव में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा इससे पहले दो जो चुनाव हुए 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव उन दोनों चुनावों में उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वो सत्ता में आए और इस सदन के अंदर आए लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुद अनुभव किया होगा कि इस बार वोट उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं अगर आए हैं तो आपके काम और आपके परिश्रम पर आए हैं आपसे भी कई सांसद ऐसे आए हैं जो घिस घिस के आए हैं 30,000 वोट से आए हैं 5,000 वोट से आए हैं आप अपने बल पे आए हैं किसी प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं आप अपने बल पे आए हैं और इसीलिए मैं आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि भारत की आवाम इस वोट से ये कहना चाहती है कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है वो भगवान नहीं सिर्फ इंसान है ये संदेश आज देश के जनादेश में हमें दिखाई देता है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस देश के आम नागरिकों का जिन्होंने आज एक प्रधानमंत्री को नहीं आज देश ने एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष को चुना है आज देश ने एक सत्ता को नहीं आज देश ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है और इसीलिए मैं देश के लोगों का आभार प्रकट करता हूं দেশৰ জনতাই এইবাৰ বিৰোধীৰ পক্ষত অৱস্থান কৰা বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে দেশৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমকো সমালোচনা কৰে মোদী আৰু বিজেপিৰ জয়গান গোৱা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল বুলি মন্তব্য কৰি গগৈয়ে কয় যে সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত ৰাইজে তেনে সংবাদ মাধ্যম আৰু সাংবাদিকসকলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে উল্লেখ্য যে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবীও উত্থাপন কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে मैं आपके समक्ष खड़ा तो हूँ लेकिन वर्तमान में मेरा मन और मेरा ध्यान असम में हो रही बाढ़ पर है और मैं आशा करूंगा कि यहाँ की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे और असम में अभी तुरंत आज ही एनडीआरएफ की एक टीम भेजे और जल शक्ति के मंत्री भी वहाँ पे जाए क्योंकि जिस प्रकार से एम्बैंकमेंट चारों तरफ टूट रहे हैं पानी जिस तरफ से बढ़ रहा है बहुत ही एक खतरनाक एक वातावरण वहाँ पे है आप भी बिहार और यूपी में देखते हैं कि कितना बाढ़ के और कटाव से लोगों को कितनी परेशानी होती है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ की सरकार
असम में होती हुई बाढ़ के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज ही एक एनडीआरएफ की टीम भेजे और जल शक्ति मंत्री तुरंत वहां पे जाए। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিয়ে অনাগত সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক যে সংসদৰ মজিয়াত বাৰুকৈ বিপাঙত পেলাব সেয়া নিশ্চিত। सदन बदल चुका है। आज आप देख रहे हैं कि जब विपक्ष जब अपनी बात उठता है तो प्रधानमंत्री को भी कैबिनेट को भी अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांगना होता है। मैंने ऐसा नजारा पिछले 10 साल में नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है और गृह मंत्री उठ के बोल रहे हैं कि हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो, हमें संरक्षण दो। ये है ताकत लोकतंत्र की, जहां पे सत्ता पक्ष हो, जहां पे विपक्ष हो। अगर आपके पास सत्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, अगर हम विपक्ष में हैं इसका मतलब हम गलत है, ये इसका मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लोगों की दो राय रखता है और फिर जनता जनार्दन निर्धारित करती है कि वो किसको राय को स्वीकारता है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष को। नेशनल डेस्क रिपोर्ट NV Live।